Hello बच्चे, how are you? So, I hope that you have properly watched the previous video of transcription, including transcription unit and all those parts. So today we are going to start with the process of transcription, right? Today we will be doing the actual process, how the transcription takes place. तो बच्चे ट्रांसक्रिप्शन हमने दोनों ऑर्गेनिजम्स में पढ़नी है, दैट इज इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, राइट? चलो, ओके। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आप सबको पता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मीन्स it contains 3 regions. One is the promoter, second structural gene, and third is the terminator, right? Chalo, so first of all we will be starting with the transcription in prokaryotes. So the topic is transcription in prokaryotes. Okay. अब प्रोकैरियोट्स में हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है। इट टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन साइटोप्लाज्म, राइट? अब साइटोप्लाज्म में अगर हो रही है तो यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता है। Okay, the process is not too complex. So let's see what happens in case of prokaryotes. चलो, अब देखो बच्चे, सबसे पहले let me tell you कि prokaryotes के लिए अपने पास जो requirement है, what is the actual requirement? Let us see what is the requirement in case of prokaryotes. तो prokaryotes में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? Yes. What is required? We need a template for formation of RNA. And what is that template? That is DNA is acting as a template. So we need a DNA template for the process of transcription, because DNA से क्या बनाना है? RNA बनाना है, right? Second is, what is the second point? Second, we need what? The major enzyme. And what is that major enzyme? That is DNA dependent RNA polymerase. The enzyme is DNA dependent RNA polymerase. The name of the enzyme is, it is DNA dependent RNA polymerase. Fine. Okay. Third point is, अब हमें सिमिलरली और क्या चाहिए? वी नीड द, जैसे हमें डीएनए रेप्लिकेशन में वी नीडेड द डीएनटीपीज, सिमिलरली हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए? आरएनटीपीज, दैट इज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। एंड व्हाट आर दीज? दीज आर राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ribonucleoside triphosphates. Fine, it is RNTPs or NTPs. Is that clear? Fine. तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है बच्चे। अब अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में DNA dependent RNA polymerases are of 3 kinds. Little more processes, that is the process is little bit more complex in case of eukaryotes. Fine. चलो, अब हम करते हैं प्रोकैरियोट्स में। अब प्रोकैरियोट्स में आई टोल्ड यू कि एक ही RNA पॉलीमरेज है, सिंगल RNA पॉलीमरेज इज देयर फॉर द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बट द पॉइंट इज, ये RNA पॉलीमरेज क्या क्या वर्क कर रहा है? इट इज़ डूइंग लॉट ऑफ जॉब्स इन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था तो हमने बहुत सारे एंजाइम्स की लिस्ट पढ़ी थी। वी हैव डन डीएनए, दैट इज हेलिकेस ऑल्सो, एंड लाइगेस वाज देयर, फाइन, एंड टोपोआइसोमरेजेस, वो सारी मशीनरी हम लोग पढ़कर आए थे। सो मेनी एंजाइम्स वर देयर, बट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वो सारे एंजाइम्स का वर्क कौन कर रहा है? अ सिंगल RNA पॉलीमरेज इज डूइंग दैट वर्क। Fine. Single RNA polymerase is doing that work. So let me tell you first of all little bit about DNA dependent RNA polymerase, especially in prokaryotes,
right? That what actually it is doing here, what are its units and what are their functions. चलो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा RNA पॉलीमरेज है, this RNA polymerase, it is made up of few subunits. ठीक है, it is made up of few subunits. Let me tell you, the subunits are alpha 2. It is alpha 2, that means 2 alpha units are there. One is beta, beta dash and omega. How? See, this is the omega unit, this one is omega unit, right? Then this one is, here we have alpha, second alpha, clear? Here we have beta subunit and here we have beta dash. अब ये सारी सब यूनिट्स आके इसके साथ बैठ गई और ये इन्होंने बना लिया एक एंजाइम विच इज़ कॉल्ड एज RNA पॉलीमरेज. एंड एक और सब यूनिट आती है विच इज़ कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर. ये हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा फैक्टर. लेट मी शो यू हेयर दिस सिग्मा हेयर. अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मा फैक्टर का फंक्शन क्या होता है. सिग्मा फैक्टर हेल्प्स द DNA पॉलीमरेज टू बाइंड टू प्रमोटर. अब DNA पॉलीमरेज को 3' to 5' वाले सेगमेंट को रीड करते हुए आगे जाना है, ठीक है. आई टोल्ड यू, अब DNA पॉलीमरेज प्रमोटर तक पहुंच गया, प्रमोटर तक उसको कौन लेकर आ रहा है, सिग्मा फैक्टर. सिग्मा फैक्टर इज एक्चुअली द इनिशिएशन फैक्टर. इट हेल्प्स द RNA polymerase to bind to that double stranded DNA segment and especially which region, promoter region पे bind करने के लिए ये help करता है. Is that clear? Fine. चलो, so sigma factor का काम क्या है, it helps the RNA polymerase to bind to promoter. उसके बाद sigma factor निकल जाता है, राइट. अब बच्चे, सिग्मा फैक्टर का वर्क वहीं तक रहता है जब उसने देख लिया दैट RNA पॉलीमरेज हैज़ बीन बाउंड टू दैट प्रमोटर रीजन, ये अपना निकल गया. नाउ इट इज़ फ्री, इट्स नॉट गोइंग टू डू एनी वर्क नाउ. क्लियर. अब सी हियर, this whole enzyme that is including the sigma factor, this complete enzyme is called as holoenzyme. This is called as holoenzyme or holozyme also, right? But जब इसमें से सिग्मा चला जाता है, when the sigma factor comes out of it, that is if sigma is outside, minus sigma अगर ये है, then what will happen, this is called as core enzyme. Now this whole enzyme is called as core enzyme. Fine, it is called as core enzyme. I'm repeating, these are the subunits, various subunits of the enzyme: omega, alpha 2, beta, beta dash, alpha, alpha 2, beta, beta dash and omega. Without the sigma factor, they forms a core enzyme. But if sigma factor is there, it is called as holoenzyme. Is that clear? ये concept clear है आपको? Though it is not in your CBSE syllabus, but you should know this thing because आपके mind में बहुत सारे questions आते हैं कि यहाँ तो कोई हेलिकेज नहीं आया, यहाँ पे तो कोई लाइगेज नहीं आया, ये कैसे काम कर रहा है. ओके, तो हेलिकेज का फंक्शन, दिस एंजाइम, ये सारा, ये जो सारी मशीनरी है, ये सारे फैक्टर्स साथ में मिलके कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? फाइन. चलो, now let's move to the actual topic of transcription. Let me start here only. देखना बच्चे, ध्यान से देखना अब इसको. एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में what is there, first, very first step is initiation. It is initiation of transcription. Okay, now in initiation of transcription, ध्यान से देखो. फॉर एग्जाम्पल, हेयर वी हैव अ डबल स्ट्रैंडेड DNA. अब मैं ऐसे बना रही हूँ. इन योर बुक्स इट्स गिवन लाइक दिस, डबल हेलिकल फॉर्म में दिया हुआ है, राइट? बट फॉर इजी एक्सप्लेनेशन आई एम मेकिंग इट लाइक दिस. बट इन योर CBSE बोर्ड एग्जाम्स यू आर गोइंग टू मेक द डायग्राम ऑफ योर NCERT. बी रिस्ट्रिक्टेड टू NCERT डायग्राम्स. क्लियर? चलो, इनिशिएशन में अब यहाँ पे अपने पास कितने रीजन्स हैं?
yes, one side we have a promoter, एक जगह अपने पास क्या है, promoter है, then another side we have a terminator. This is all about transcription unit, right? Promoter is there, terminator is there, and within it structural genes are there. Clear? So for example, here we have A, T, C, G, C, and this is 3 prime to 5 prime. This is 5 prime to 3 prime. Clear? This is our template DNA. This one is the template DNA, and this one is the coding DNA. This is the coding DNA. Fine. This is the coding strand or this is the template strand. Clear? Now, अब क्या होगा? Sigma factor along with the core enzyme, that is now the complete holoenzyme is coming here. It is reaching to this part. I'm making it here. ये यहाँ पर इसको स्कैन करता करता आ रहा है, and now it has reached to this part. Fine. सिग्मा फैक्टर ही आइडेंटिफाई करेगा TA प्रिब्नो बॉक्स, दैट इज रिकॉग्निशन बॉक्स इन प्रिब्नो बॉक्स को, और DNA पॉलीमरेज को यहाँ पर बाइंड करवाएगा. इज दैट क्लियर? सो हेयर मेजर दैट वी वांट टू शो इज दैट हेयर वी हैव विच फैक्टर? सिग्मा फैक्टर. सो हेयर वी हैव द सिग्मा फैक्टर अटैच टू RNA पॉलीमरेज एंजाइम. ये सिग्मा फैक्टर RNA पॉलीमरेज के साथ अटैच्ड है अभी. इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट इनिशिएशन. क्लियर हो गया? अब क्या होगा? सेकेंड स्टेप इज इलोंगेशन. व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? इट इज इलोंगेशन. इलोंगेशन, हाँ जी. इलोंगेशन में क्या करना है? ये जो हमारे RNTPs हैं, दे विल बी टेकन अप बाय RNA पॉलीमरेज और वो बाइंड कराता जाएगा. राइट. नाउ द पॉइंट इज, अब सिग्मा फैक्टर को हटना है. क्लियर? सिग्मा फैक्टर इज गोइंग टू सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम दिस RNA पॉलीमरेज एंजाइम, एंड नाउ RNA पॉलीमरेज इज मूविंग फर्दर. ठीक है? अब देखना ध्यान से. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है? DNA सेगमेंट. Let me make it here. This is our DNA segment. Okay, this is 3 prime, 5 prime, 5 prime and 3 prime. यहाँ पे बच्चे अपने पास ये काम हो चुका है. So here सिग्मा फैक्टर को हम शो करेंगे कि सिग्मा फैक्टर अब बाहर आ चुका है. सिग्मा फैक्टर इज आउटसाइड नाउ. इसका काम हो गया. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज this one, that here we have the sequences ATGC. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा पॉलीमरेज है. पॉलीमरेज इज एट दिस पोजीशन. ठीक है? ये पॉलीमरेज यहाँ पे बैठा है. तो क्या होगा? द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ दिस रीजन विल ओपन अप. समझ आई चीज़? ये देखो ऐसे, ये चीज़ है. दिस इज द DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA. पॉलीमरेज कहीं यहाँ पे आके बैठ गया, दिस रीजन. तो यहीं से एक छोटा सा बबल बन जाएगा, एंड दिस बबल इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन बबल. राइट? हमारा वहाँ पे रेप्लिकेशन बबल था, बट रेप्लिकेशन बबल जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, द साइज इज बिगर. बट इन दिस केस क्या करना है? RNA पॉलीमरेज को छोटे छोटे स्ट्रैंड्स को ओपन अप करना है और उसमें से RNA बनाते जाना है. फिर से स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे? दे विल मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. वो DNA के हाइड्रोजन बॉन्ड्स फिर से बनते जाएंगे और RNA बाहर निकलना शुरू हो जाएगा. इज दैट क्लियर? नाउ सो जहाँ पे ये जिस रीजन पे दिस RNA पॉलीमरेज इज सीटेड एट द सेम रीजन, that is a little bit transcription bubble is being formed. Let's see here how. See this region, that for example यहीं पे हमारा RNA पॉलीमरेज है और ये हमारा स्ट्रैंड क्या हो गया? इट इज़ ओपन अप लाइक दिस. और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में आई एम शोइंग दिस पॉलीमरेज हेयर, कि पॉलीमरेज हमारा यहाँ पर है. This is the polymerase, and this polymerase is not having which factor now? It is not having the sigma factor. It's gone.
राइट। फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव ए टी सी जी सी। अभी हमारे यहाँ पे कौन से सीक्वेंसेस हैं, ए इज देयर एंड टी इज देयर, ठीक है। इट्स ए एंड टी हेयर, दिस इज पॉलीमरेस इज होल्डिंग दिस रीजन, ओपन अप हो गया, इसी को वो क्या कराएगा, इन्हीं के ये बॉन्ड्स बनवाएगा, ठीक है। अब ए टी, ए के नीचे क्या है डीएनए में, इट इज टी एंड टी के सामने इट्स ए। सिमिलरली हेयर इट इज टी एंड इट इज ए, बट हमारा वो क्या है, आरएनए पॉलीमरेस इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, इट्स गोइंग टू फॉर्म आरएनए। सो टेम्परेरी bond is formed here and A के सामने T, RNA we know that thymine is replaced by uracil, it is U and it is A here. So a temporary bond, hydrogen bond, temporary bond is formed, clear, and side by side this RNA formation has started. Is this clear? अब क्या होगा, polymerase आगे जाएगा, ठीक है, polymerase will move ahead, आरएनए का बॉन्ड टूटेगा डीएनए से, ये अलग हो जाएगा एंड अगेन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो बेसिस में बॉन्ड्स है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की दोबारा से फॉर्मेशन हो जाएगी। इज इट पार्ट क्लियर? लेट मी टू टेल यू हियर, आवर नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट विल हैपन, सी नाउ दिस पार्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, पॉलीमरेज हैज मूव्ड अहेड। अब पॉलीमरेज कहाँ चला गया, आगे चला गया एंड हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है, छोटा सा ट्रांसक्रिप्शन बबल आगे फॉर्म हो जाएगा लाइक दिस। सो हियर वी हैव द बॉन्ड्स ए टी और इसके सामने टी एंड ए, दे आर बॉन्डेड, और यहाँ से जो हमारा आरएनए है इट इज़ गेटिंग सेपरेटेड, बॉन्ड्स में नहीं आएगा, इनके बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये हमारा सेपरेट हो गया, ठीक है। दिस इज यू एंड ए लाइक दिस, इट इज 5 प्राइम टू, यहाँ पे ये 3 प्राइम चल रहा है। इज दैट क्लियर? सो सी हियर इट इज 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, क्लियर। नाउ व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट आर ए एंड टी इज डन, सी जी सी। लेट्स सी हियर वी हैव सी, इट इज जी, इट इज सी, तो हियर वी हैव जी C and G। तो अब जो हमारा RNA बनेगा, RNA polymerase is now at this position. What is the position of RNA polymerase? It is somewhere at this position. RNA polymerase ने ही क्या किया, इसको open up कर दिया, transcription bubble बना दिया, and now bond formation, that is RNA formation is going on here. So again here G will be formed, G, C and G, C like this, clear and done. Now it will move ahead, आगे अपने पास there is a transcription factor, clear. So now let's start with next we have what, termination factor is there, that is terminator region is there, okay. So third point is termination, third step is termination, थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन के लिए भी व्हाट्स देयर, दैट अ फैक्टर इज देयर विच इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन फैक्टर एंड द नेम ऑफ दैट फैक्टर इज रो फैक्टर, द नेम ऑफ दैट फैक्टर इज रो फैक्टर। अब जब ये फैक्टर इनकाउंटर हो जाएगा, व्हेन दिस फैक्टर कम्स हियर, ठीक है, अब ये फैक्टर आने की वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा, ये इसको ओपन अप कराएगा, आरएनए को अलग करेगा, दैट मीन्स नाउ इट इज़ वर्किंग एज हेलिकेस। अब आगे तो कुछ ओपन अप नहीं होना, तो आरएनए पॉलीमरेज इज नॉट वर्किंग एज हेलिकेस नाउ। अब ये रो फैक्टर हेलिकेस का काम करेगा, ओपन अप करेगा, ठीक है, एंड नाउ आरएनए पॉलीमरेज विल फॉल डाउन, वो भी अलग हो जाएगा एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट। इज दैट क्लियर? सो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। लेट मी टेल यू हाउ, सी हियर, दिस इज आवर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। यहाँ पे हमारा आरएनए वाज बीइंग फॉर्म्ड, ये सोचो ये अपना आरएनए फॉर्म हो रहा है 5' to 3'। अब क्या होगा, रो फैक्टर मिल गया, दिस वाज आर, यहाँ कहीं पे देयर इज अ टर्मिनेटर, टर्मिनेटर आ गया, तो व्हाट इज देयर,
a rho factor comes here, attaches the RNA polymerase और ये हेलिकेज का काम करेगा, ठीक है, जिससे ये RNA polymerase will come outside और ये पूरे RNA और DNA के स्ट्रैंड्स को अलग कर देगा, मेल्टिंग हो जाएगी, फाइनली हमारा RNA क्या हो गया, फ्री हो गया. RNA is free now, totally the RNA is free and now this RNA will shift to this side. RNA भी हमारा बाहर आ जाएगा. Is this clear? So initiation, at the time of initiation, what is working? Sigma factor is working. Let me write here the complete name. It is sigma factor. Sigma factor. Clear? Now sigma factor is working at the time of initiation. Initiate कराया, RNA polymerase promoter से attach हुआ, sigma वापस चला गया, right? Elongation में RNA polymerase is moving, working as helicase. It is only opening the DNA and side by side it is polymerizing the complete RNA. After RNA polymerase meets the terminator region where termination factor is present, that is rho factor is present, what will happen? RNA polymerase भी बाहर आ जाएगा DNA से and will stop the process of transcription and side by side हमारा जो RNA बना था वो भी अलग से separate होके बाहर आ गया. Is this clear now? So this is the whole process of transcription in case of prokaryotes. Prokaryotes में इतना ही होता है. Is that clear? चलो. Now the point is what happens in eukaryotes. Okay, now transcription in case of eukaryotes. Let's study. बच्चे eukaryotes में ना little bit difference is there. ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, किसकी वजह से है, क्यों है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. चलो, सो इन केस ऑफ eukaryotes. Okay. Now we know that in case of eukaryotes, the process of transcription occurs in eukaryotes में. Where does the process of transcription occurs? Replication was in nucleus. Eukaryotes में they have a well-defined nucleus. That's why the process of transcription will also occur in nucleus. Fine. अब ध्यान से देखो. यहाँ पे आप लोग let us draw the cell, animal cell, ठीक है. Then we have nucleus here. In the nucleus what is there? We have DNA, ठीक है. अब DNA से क्या बना? RNA has been formed. DNA से क्या बन गया? RNA. Let us see, this is RNA. But the point is DNA to RNA formation is okay, right? But what about protein? Protein synthesis in case of eukaryotes, where it is happening, where it is taking place. Where does protein synthesis occur in case of eukaryotes? So protein synthesis occur in the cytoplasm. RNA, that means ये RNA, it will come out of the nucleus, right? And it is going to form the protein here. RNA to protein. RNA will come out of the nucleus and it's going to form the protein. So this process is little bit complex. Okay, this is the difference in transcription in case of प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि आरएनए फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है. आरएनए फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, बट दिस आरएनए हैज़ टू कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. बट अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड थर्ड प्रोसेस दैट इज ट्रांसलेशन विच इज प्रोटीन सिंथेसिस, ये तीनों प्रोसेस कहाँ पे हो रहे हैं? इन द साइटोप्लाज्म ओनली इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. जिस वजह से रेप्लिकेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बनता गया. अब जैसे ही आरएनए का स्ट्रैंड बनता जा रहा है, पीछे से उसका प्रोटीन भी बनना शुरू हो जाता है. दिस इज द केस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. इज दैट क्लियर? अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी, एक कॉम्प्लेक्सिटी ये है
ठीक है। वन कॉम्प्लेक्स पार्ट इज दिस कि यहाँ पे आरएनए को बाहर शिफ्ट होना है, इट हैज़ टू मूव आउट of the nucleus. One complex part is this. Another is that in case of eukaryotes, 3 different type of RNA polymerases are there. So let's talk about the 3 different type of RNA polymerases. First of all, RNA polymerases in case of eukaryotes. RNA polymerases in case of eukaryotes, we have 3 RNA polymerases. It is 1, it is 2, and this is 3. RNA polymerase 1, 2 and 3. अब बच्चे देखो, RNA are of different types. They are tRNA, rRNA and messenger RNA. That is transfer RNA, messenger RNA. Okay, and we have ribosomal RNA as well. तो अब ये जो तीनों के तीनों आरएनए हैं, इनको बनाने वाला कोई और ही पॉलीमरेज है. दैट्स व्हाई वी हैव 3 डिफरेंट पॉलीमरेजेस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. बट प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ये सारे ही काम कर देता है. ओके, नाउ सी हियर. चलो, आरएनए पॉलीमरेज 1 इज गोइंग टू प्रिपेयर विच आरएनएज. जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 है, ये क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म 5.8S rRNA. It will form 18S rRNA, and next is 28S rRNA. 28S rRNA. You have to learn this, very very important. इस पार्ट में से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में 100% द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पार्ट. Okay, so RNA polymerase 1 forms 5.8S rRNA, then we have 18S rRNA and 28S rRNA. That means basically RNA polymerase 1 is making ribosomal rRNA. Major function is it is forming ribosomal that is ribosomal RNA. Is that clear? Second, RNA polymerase 2. RNA polymerase 2 क्या बनाता है? बहुत सारे बच्चे आप मिस्टेक करके आते हो. जब पूछा जाता है रिगार्डिंग RNA polymerase 2, योर आंसर इज इट फॉर्म्स mRNA, दैट इज मैसेंजर RNA. बट मैसेंजर RNA नहीं फॉर्म करता है. अभी जो RNA फॉर्म होके आता है by RNA polymerase 2, that is the primary transcript. ओके, दैट इज़ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. उसमें बहुत सारी चेंजेस होने हैं, मॉडिफिकेशंस होनी होती हैं, तो बाद में जाके mRNA बनता है. बट स्टार्टिंग इट इज़ कॉल्ड एज hnRNA. इट इज़ कॉल्ड एज hnRNA एंड दिस इज़ कॉल्ड एज heterogeneous nuclear RNA. This is the primary transcript as well, and later let me tell you here only that after modification it is going to make mRNA. मॉडिफिकेशन के बाद इसमें क्या बनेगा? mRNA बनेगा, right? So whenever the question comes that what is the function of RNA polymerase 2, it forms heterogeneous nuclear RNA. Clear? Third we have RNA polymerase 3. So RNA polymerase 3 का function होता है, major function is that it forms tRNA which is called as transfer RNA. It is forming tRNA which is called as transfer RNA. एक और चीज़ बनाता है, 5S rRNA भी बनाता है ये. It forms 5S rRNA and it also forms snRNA. That is small nucleolar RNA. It helps in splicing. ये splicing में help करता है. Clear? अब if question comes that majorly rRNA is formed by, so our answer should be majorly rRNA कौन बना रहा है? RNA polymerase 1 बना रहा है. Then mRNA is formed after modification of hnRNA, and majorly transfer RNA is formed by RNA polymerase 3. Is that clear? Right? snRNA, this helps in splicing.
This helps in splicing mechanism that I will tell you. Okay, is this part clear? mRNA is called messenger RNA. mRNA is called as messenger RNA, and tRNA is called as transfer RNA. It is called as transfer RNA. Is that clear? Fine. चलो, अब this is one complexity कि 3 RNA polymerases are there in case of eukaryotes. Now is we are going to study modification of hnRNA which is going to form mRNA. Okay, ठीक है. Now the question arises, what is the need of modification? इस hnRNA की modification क्यों करनी है हमने? देखो, first of all I told you कि little more complex procedure is there in case of eukaryotes. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, RNA formation तो यहाँ पे हो गया, but now RNA has to come out of the nucleus. ठीक है, अब न्यूक्लियस से बाहर आना है इसको, तो इट नीड्स अ प्रोटेक्शन. बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो इस पे अटैक कर देंगे जब ये RNA एज इट इज़ ही बाहर आएगा फ्रॉम द न्यूक्लियस. Okay, so to protect this RNA from the enzymatic action, ठीक है, न्यूक्लियस के पास भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हम लोग भी बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लेके जाते हैं. ठीक है ना, एक्टिवा पे जाएंगे, अपने पास हेलमेट होगा, हर चीज़ होगी. ठीक है, एक और हमने ऊपर से कवरिंग ली होती है टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. Similarly, this RNA, when it is coming out of the nucleus into the cytoplasm, it also needs protection, and that protection is called as modification of this hnRNA, and this modification is called as post-transcriptional modification. Because ट्रांसक्रिप्शन तो हो चुका है, बट ट्रांसक्रिप्शन के जो बाद की मॉडिफिकेशन है जो इसको रेडी कर रही है to send this RNA into the cytoplasm is called as post-transcription modification, and ये post-transcription modification occurs only and only in case of eukaryotes. Is that clear? Now let us start with post-transcriptional modification. Here our topic is post-transcriptional modification. चलो, अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में लेट अस सी, दिस इज द RNA, hnRNA 5 prime to 3 prime. दिस इज आर hnRNA. ठीक है, अब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दिस 5' एंड. इसके 5 प्राइम एंड को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. एंड्स पे खतरा हो सकता है तो उसके हमें 3 प्राइम एंड को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. क्लियर? और बीच में भी कुछ चेंजेस करने हैं, राइट. सो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे व्हाट इज देयर इज अ 5' कैप. 5' पे क्या लग जाएगी, 5 प्राइम एंड पे व्हाट इज देयर, अ कैप विल बी देयर. ठीक है, जो इसको क्या कर देगी, प्रोटेक्ट कर देगी, राइट. ऐसे ही 3 प्राइम एंड पे बच्चे क्या होता है, बहुत सारे एडिनिन के रेसिड्यूज लग जाते हैं, दैट इज विच इज फॉर्मिंग अ पॉली ए टेल. दिस इज फॉर्मिंग अ पॉली ए टेल. पॉली मीन्स लार्ज नंबर ऑफ ए रेसिड्यूज, एडिनिन के रेसिड्यूज लग जाएंगे और एक टेल बना देंगे. दिस इज द कैप एंड दिस इज द टेल. सो कैप वाला प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिंग, एंड द प्रोसेस विच इज एडिंग द ए टेल इट इज कॉल्ड एज टेलिंग. कैपिंग एंड टेलिंग. ठीक है, और थर्ड मॉडिफिकेशन ऑल्सो अकर्स, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद कैपिंग प्रोसेस. फर्स्ट इज आर कैपिंग. First modification is capping. Okay, so what occurs here? Capping means 5' end पे हमारी क्या हो जाएगी, 7 methyl guanosine.
7 मिथाइल गुआनोसिन की क्या लग जाएगी, कैप लग जाएगी, ठीक है। वेयर द कैप इज एडेड एट द 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड पे क्या लग रही है, कैप लग रही है। किसकी कैप लग रही है, गुआनोसिन की कैप लग रही है। दिस इज 7 मिथाइल गुआनोसिन, ठीक है, की कैप लग रही है। एंड नाउ एंजाइम इज गुआनिल ट्रांसफरेज, एक एंजाइम आएगा, नेम ऑफ द एंजाइम इज गुआनिल ट्रांसफरेज। ये गुआनिल ट्रांसफरेज एंजाइम गुआनोसिन रेसिड्यू को ट्रांसफ़र कराएगा, मिथाइलेशन हो जाता है 7 वाले एंड पे गुआनिन के, ठीक है, और एक कैप यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी, राइट। सिमिलरली तो अब ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा हमें, लाइक दिस, जी की कैप लग गई, ठीक है। दिस इज 7mg एंड वेयर द एंड इज 5 प्राइम एंड, 7 प्राइम मत बोल देना बिकॉज ये इसमें भी मिस्टेक कर देते हो आप लोग। आपकी एनसीईआरटी में इट इज़ गुआनोसिन की कैप लग जाती है, दिस मच इज गिवन, ओके। सो दिस इज 5 प्राइम एंड पे जी की कैपिंग हो चुकी है एंड नेक्स्ट इज आर 3 प्राइम एंड। फाइन, जी की कैपिंग हो गई, दैट मीन्स नाउ द 5 प्राइम एंड इज प्रोटेक्टेड, नाउ इट इज फ्री फ्रॉम अटैक ऑफ अदर एंजाइम्स लाइक न्यूक्लियेसेस। क्लियर। सेकेंड स्टेप इज, second modification is this is tailing, this is called as tailing. This tailing process, what happens, this is the 5 prime end जिस पे G की कैप लग चुकी है, ठीक है, 7 मिथाइल G की कैप ऑलरेडी है एंड नाउ एट दिस 3 प्राइम एंड व्हाट इज देयर, बहुत सारे नंबर ऑफ एडिनेट रेसिड्यूज विल कम हियर, ठीक है, एंड नियर अबाउट 200 to 300 रेसिड्यूज ऑफ एडिनेट they are added, 200 to 300 adenate residues are added and name of the enzyme which add these residues are poly A polymerase. Name of the enzyme is poly A polymerase, poly A polymerase enzyme. अब ये poly A polymerase enzyme है, this is also polymerase, this polymerase enzyme is adding what, adenate residues, adenylate residues को add करता जा रहा है, but polymerase है, क्या इसको कोई template चाहिए to add these residues, क्या इसको ऊपर कोई template चाहिए, this is template independent polymerase। याद रखना ये जो एंजाइम है दिस इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमरेज, इट डज नॉट नीड एनी टेम्पलेट टू फॉर्म दीज ए रेसिड्यूज, ओके। I'm writing here template independent polymerase. It is template independent polymerase. Fine, template independent polymerase है and now ये देखो इसने ऐड कर दिया and हमारा अब जो बना है this is now 5 prime, this is 3 prime poly A tail and here we have 7 methyl guanosine. So now done, this part is done. Next अब क्या आता है, one more modification is left. देखो बच्चे जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है ना, ठीक है, उसमें बहुत सारा सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं, लेट अस से दैट जो हमारी जीन्स होती हैं यूकैरियोटिक जीन्स जो होती हैं दे आर कॉल्ड एज स्प्लिट जीन्स। व्हाट आर दे कॉल्ड, स्प्लिट जीन्स। लेट मी टेल यू द मैकेनिज्म हियर, ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू हियर ओनली, स्पेस इज देयर। ये देखो दिस इज द डीएनए। अब डीएनए में कौन सी जीन्स है, स्प्लिट जीन्स है, दैट मीन्स सम रीजन इज कोडिंग एंड सम इज नॉन कोडिंग। Some region is, this is the coding region, coding means it is going to make the protein, and this is the non-coding region, non-coding region, ठीक है। अब हमारी जो जीन्स होती हैं दे आर, जो डीएनए सेगमेंट होता है उसमें बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं विच आर कोडिंग, दैट इज विच आर कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड एंड अनदर इज नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग मीन्स वो कुछ भी कोई पॉलीपेप्टाइड या कोई प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। और ऐसी जीन्स जिसमें ऐसे दोनों रीजन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्प्लिट जीन्स। व्हाट आर दीज जीन्स कॉल्ड? स्प्लिट जीन्स। अब जो आरएनए बनेगा, that is that hnRNA which is formed, it will also contain those regions, right? अब क्या होगा, ये जो RNA है इसको बाहर जाना है। बाहर तो किस लिए जा रहा है? It is going outside into the cytoplasm for formation of protein only. तो is there any requirement of these regions, non-coding regions? Is there any requirement? No, there is no requirement. तो इसी वजह से ये जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं ये अलग हो जाते हैं, ये कट हो जाते हैं फ्रॉम दीज कोडिंग रीजन्स, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम दीज कोडिंग रीजन्स, राइट? सो लेट अस सी हियर, थर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मीन्स काट के अलग कर देना, रिमूव कर देना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। ओके, स्प्लाइसिंग में let's see this work is done. Okay, so here we have the RNA which has 5'. I'm writing only G here and I'm writing here A part. Now it has some regions which are coding. I'm making here like this. These are the coding regions. Okay, and these coding regions are called as exons. These are called as exons, and this black portion which are non-coding regions, these are called as introns. These are called as introns. Introns are non-coding, they are non-coding, and exons are coding, they are coding regions. फाइन। अब हमें किसको रिमूव करना है? वी आर गोइंग टू रिमूव दीज इंट्रॉन्स। हमें इन इंट्रॉन्स को रिमूव करके बाहर कर देना है। तो अब कैसे होते हैं ये? यहाँ पे पूरा स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स आएगा विच इंक्लूड्स दिस आरएनए ऑल्सो, और ये पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? इट विल वर्क लाइक दिस। सी हेयर, दीज आर द कोडिंग रीजन, और ये नॉन कोडिंग रीजन को पकड़ के इस तरह से फोल्ड करा देता है, लाइक दिस, ऐसे। ये नॉन कोडिंग रीजन्स क्या हो जाते हैं? इस तरह से ऊपर की तरफ जाके, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लैरियांट। दिस इज कॉल्ड एज लैरियांट। इस तरह से एक लैरियांट बन जाता है, ठीक है। बाद में ये कट हो जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज कट फ्रॉम हेयर, एंड क्या रह गया? दिस इज व्हाट? दिस इज आर ओनली एक्सॉन। सारे के सारे एक्सॉन्स बाइंड कर जाएंगे। दैट इज ओनली द कोडिंग पार्ट इज लेफ्ट नाउ। नॉन कोडिंग पार्ट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये यहाँ से अलग हो जाते हैं। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ, right? So what is this? Now we have this RNA 5 prime 3 prime which has poly A tail. Here we have G cap also. Now this is called as mRNA. After post transcriptional modification, this RNA is called as messenger RNA. Is this part clear? Right? So post transcriptional modification में first of all 5 प्राइम पे देयर इज़ अ कैपिंग, जी की कैप है, गुआनोसिन की कैप लग रही है। अब ये गुआनोसिन 7 अपने 7 वाले पार्ट से क्या है? मिथाइलेटेड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 7 मिथाइलेटेड गुआनोसिन, ठीक है। गुआनिल ट्रांसफरेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम जो इस गुआनोसिन को यहाँ पे ऐड कराएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज 3 प्राइम पे क्या हो रहा है? बहुत सारे ए वाले रेसिड्यूज की टेल बन जाएगी। नियर अबाउट 200 to 300 रेसिड्यूज ऑफ ए और एडिनाइलेट रेसिड्यूज आर देयर। नेम ऑफ द एंजाइम इज पॉली ए पॉलीमरेज विच इज टेम्पलेट और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमरेज ऐड करेगा, ठीक है। दैट मीन्स दोनों के दोनों एंड सिक्योर्ड हो गए आरएनए के। नाउ व्हाट इज देयर? फ्यू नॉन कोडिंग रीजन्स आर आल्सो देयर इनसाइड आरएनए। उन सारे नॉन कोडिंग रीजन्स को हमने बाहर निकाला एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। इज दैट क्लियर? अब आपको क्वेश्चन आता है दैट कॉम्प्लेक्सिटी इन यूकैरियोट्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है यूकैरियोट्स में? बिकॉज ट्रांसलेशन कहाँ होना है? साइटोप्लाज्म में होना है, तो आरएनए को मॉडिफाई होना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग इज दैट आरएनए के
formation में there are 3 different RNA polymerases. RNA polymerase 1 which forms ribosomal RNA, RNA polymerase 2 forms hnRNA, and RNA polymerase 3 majorly forms transfer RNA. Is that clear? Right. अब बच्चे एक चीज़ और आती है आपकी, little bit part is there. I need to explain you a thing regarding the cistron. Cistron बताना है आपको. What is the meaning of word cistron? देखो, अब this is our DNA. This is the DNA. ठीक है. अब ये DNA हम पढ़ते हैं कि DNA से क्या बनता है. That DNA it forms RNA. DNA forms RNA and finally that is DNA फिर क्या बनता है. Finally it is forming protein. Finally it is forming protein. ठीक है. And which part of DNA? Segment of DNA. Here we have segment of DNA. Let me make it from different color. आपको फिर ऊपर वाले part से confusion हो जाएगा. This segment of DNA is called as a gene. Functional segment of DNA is called as gene. Functional segment of DNA is called as gene. Is that clear? अब जीन का वो वाला फंक्शनल सेगमेंट जो प्रोटीन बनाएगा. इज दैट क्लियर? इस जीन का फंक्शनल सेगमेंट वो वाला फंक्शनल पार्ट जो प्रोटीन बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन. Is that clear? The functional part of a gene, or we can say the functional part of a DNA which is going to form a polypeptide, that is called as cistron. What is cistron? Cistron is the functional part of DNA which is going to form polypeptide. अब जीन का पार्ट तो देखो आरएनए भी बना रहा है. ठीक है. द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जीन इज फॉर्मिंग आरएनए, बट वो पर्टिकुलर फंक्शनल पार्ट जिससे प्रोटीन बनेगा, पॉलीपेप्टाइड बनेगा, दैट पर्टिकुलरली इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन. अब ऑन द बेसिस ऑफ सिस्ट्रॉन, डीएनए कैन बी मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड इट कैन बी पॉलीसिस्ट्रॉनिक. डीएनए कैन बी मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड इट कैन बी पॉलीसिस्ट्रॉनिक. क्यों ये दो तरह का? बिकॉज देयर आर 2 different type of organisms. Let us talk in case of eukaryotes. Eukaryotes, and here let us talk about prokaryotes. अब देखो बेटा, यूकैरियोट्स में ये जो पार्ट है this is the DNA. For example, this is the cistron. It is coding for a single polypeptide. One polypeptide only. One polypeptide. That is, इससे एक ही प्रोटीन बनेगा. That's why it is called as monocistronic. Monocistronic. Is this part clear? डीएनए यूकैरियोट्स के केस में मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है. क्यों होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक? बिकॉज ये जो सेगमेंट है इससे दिस इज कोडिंग फॉर ओनली अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड. ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड ही बनाएगा. इज दैट क्लियर? नाउ इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इफ वी सी, यही रीजन है. ठीक है. लेट्स सी, दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए और दिस इज दैट सिस्ट्रॉन एंड it is coding for many polypeptides. It is coding for many polypeptides. That means ये इतना सा region बहुत सारे proteins बना सकता है. Prokaryotes में this is possible. It is coding for many polypeptides. That's why it is called as polycistronic. It is called as polycistronic DNA, and this is monocistronic DNA. Is this part clear? Okay. तो अब आपके जो questions आ सकते हैं, that is from 3 polymerases. Any can be asked. ठीक है. RNA polymerase 1 का function बताओ, 2 और 3 का function बताओ. Right. Next we have
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. देन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, पूरा प्रोसेस विद NCERT डायग्राम यूजिंग सिग्मा फैक्टर एट इनिशिएशन, देन रो फैक्टर एट टर्मिनेशन. वो सारा यू हैव टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, revise it properly. Now read your NCERT and make your notes. All the best.